Good afternoon to students of class 9. Welcome to all of you in physics class. Today we will start a new chapter, gravitation. Okay. Today we will start new chapter, gravitation, and in this chapter we will discuss about universal law of gravitation and terms related with gravitation. Okay. And so here come on the whiteboard and we study about that. Here is the chapter is gravitation, and first of all we will discuss about gravitational force. What is gravitational force? Okay, according to Newton, every object in this universe attract every other object with a certain force. The force with which the two objects attract each other is called gravitational force. Okay, due to gravitational force, our earth attracts everything towards itself. The leaves falls down towards the earth. The stone falls down towards the earth. If we throw the ball upwards, then after some time it will return towards the earth. This is due to gravitational force. Okay, Newton states that every object, according to the Newton's, every object in the universe, not only this world, universe, attract every other object with a certain force. And this force with which two objects attract each other is called gravitational force. Okay, if the masses of the object are small, then the gravitational force between them is very small. If the two bodies having less masses, then the gravitational force is very small. If however one of the object is very big, then the gravitational force becomes very large. Okay, suppose that the gravitational force between a stone and our earth is very large, because any one object has a large mass. Okay, and so attraction is very large. Okay, and now the universal law of gravitation. This is the main universal law of gravitation. This is discovered by Sir Isaac Newton. Okay, Newton states that everybody in the universal law of gravitation, Newton states that everybody in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, this is the universal law of gravitation. It is very important. Okay, suppose the two bodies A and B, having mass m1 and m2, and the distance between the two is r, or another way we will say that A and B are apart a distance r, and so according to and also let the force of attraction between these two bodies is F, capital F. According to the universal law of gravitation, the first part states that the force between the two bodies is directly proportional to the product of their masses. Okay, m1 m2 are the two masses of the two bodies A and B, and so according to this rule, this principle, F is directly, this is the sign of directly proportion. Okay, F is directly proportional to m1 into m2, that is product of their masses. Suppose that it is equation 1. This is equation 1, and now in the second part we will come in the second part, that universal law of gravitation. In the second part of universal law of gravitation, the force between the two bodies is inversely proportional to the square of the distance between them. It means that the force of attraction will increase when the distance will decrease. It means that if the distance between A and B is large, then force of attraction is very large. If the distance between A and B is very few distance, they are close to each other, then force of attraction is very large. Okay, and it means that the force between the two bodies is inversely proportional
to the square of the distance between them. If the distance is large, then force of attraction is less. If the distance is very few, the two bodies are close, then force of attraction is very large. Okay, and so this is the equation 2. Suppose that this is the equation 2. Now combining the equation 1 and 2, this is equation 1 and this is equation 2, we will get that F is directly proportional to m1 into m2 by this r1, r square, sorry, r square, not r1, r square. And now we remove the sign of proportionality. In place of proportionality, we will use capital G. Capital G is called constant term. This is called universal gravitational constant. And now the equation will be, finally equation will be F is equal to capital G into m1 into m2 by r square. This is the universal law of gravitation. This is the expression for universal law of gravitation. This is important for as a numerical value. Okay, we will solve numerical by this expression. Okay, once again I would like to explain you that दिस इज, ये हमारा ग्रेविटेशन, इसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण. गुरुत्वाकर्षण जो हमारा चैप्टर है, ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग 3rd चैप्टर जो है आपके बुक का वो ग्रेविटेशन है. इसे हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं. और इसमें हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन शुरू करेंगे. समझे, वो सार्वत्रिक सिद्धांत कहते हैं उसे हम. गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सिद्धांत को बोलते हैं हिंदी में, ये हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में वो कहलाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इसके बाद न्यूटन का सिद्धांत जो है वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले देखें हम लोग, आइए व्हाइट बोर्ड पर. ये कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल. कहता है क्या इसमें कि कोई भी वस्तु दुनिया ब्रह्मांड में जितनी सारी चीज़ें हैं, केवल दुनिया में नहीं पूरे ब्रह्मांड में जितनी सारी चीज़ें हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, जितने सारी चीज़ें हैं, वो सभी एक दूसरे को अपनी एक बल से, एक फोर्स से अपनी ओर खींचते हैं. और कह रहा है क्या, ये फोर्स विथ विच, जिस बल के द्वारा दूसरे वस्तु को पहला वस्तु खींचता है, इस बल को हम कहते हैं गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल. दोनों के बीच में जो बल लगता है उसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल. कोई दो वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है आपस में, उसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल. और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही हमारी धरती, जितनी सारी चीज़ें हैं ऊपर से गिरती है हमारी धरती पे, हमारी धरती किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है. पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से फल गिरते हैं, वो सारा का सारा धरती पे गिरता है. हम ऊपर कहीं बॉल फेंकते हैं तो बॉल फेंकने के बाद फिर बॉल थोड़ी देर बाद लौट करके फिर धरती पे आता है. ये बात बड़ा ही अच्छी बात है, जान लीजिए कि ये पेड़ से पत्ते गिरते थे, लेकिन न्यूटन ने ये बतलाया क्यों गिरते हैं. क्योंकि ये न्यूटन ने सबसे पहले इस बात का निष्कर्ष निकाला, इस बात को एक सिद्धांत दिया, और उसके आधार पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसे कहते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक सिद्धांत कहते हैं इसे. और इसे हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के रूप में जानते हैं. और न्यूटन ने कहा कि यदि दो वस्तु का मास कम हो, उनकी मात्रा कम हो, तो दोनों के बीच में आकर्षण जो बल लगता है वो कम होगा. और दो वस्तुओं के बीच में यदि उसमें से कोई एक वस्तु दूसरे के तुलना में अधिक मास उसका हो, अधिक वजन हो, तो वो दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कह सकते हैं, या दोनों के बीच में जो बल लगता है वो बहुत अधिक मात्रा में होगा. ठीक है, ये बतलाता है. तो अब देखें हम लोग आए, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, कहते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक सिद्धांत इसे हम कहते हैं. और इसे हम हिंदी में बोलते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक सिद्धांत, और इसे हम कहते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसमें आधार में न्यूटन कहता है, न्यूटन साइंटिस्ट है, सर आइजैक न्यूटन का पूरा नाम था. उनका कहना था कि पूरी ब्रह्मांड में जितनी सारी चीज़ें हैं आपस में एक दूसरे के फोर्स के सारे, बल के सारे अपनी ओर खींचती है. और यह बल जो है वो कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, वो अनुपात किसके अनुपात में बढ़ता है, तो दो वस्तुओं के बीच, जिस दिन दोनों के बीच में एक दूसरे का आकर्षण बल होता है, वो दोनों के अनुपात में दोनों के अनुपात के प्रोडक्ट में, दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, गुना करते हैं, गुणनफल के अनुपात में बढ़ता है. अब जैसे मान लीजिए कि दो वस्तु A और B वस्तु है, इसका एक का मास है m1, दूसरे का मास m2 है, और दोनों के बीच की दूरी r है. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फर्स्ट पार्ट के मुताबिक ये कहता है क्या, दोनों वस्तुओं के बीच में द फोर्स बिटवीन टू बॉडी, दोनों वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
वो अनुपात समानुपात में होता है। किसके? तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, इन दोनों का जो मास होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसके अनुपात में ये होगा। फोर्स ऑफ, कहने मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा जब दोनों का मास का प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो ये इक्वेशन 1 हम इसे मान लेंगे। ठीक है। अब दूसरा है, दूसरा पार्ट से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट है द फोर्स बिटवीन टू बॉडी, दो वस्तुओं के बीच में जो यदि दूरी के अनुसार वो अपने दो वस्तुओं के बीच में कह रहा है क्या कि दोनों वस्तुओं के बीच द टू बॉडीज बिटवीन द टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों के बीच में जो बल होता है यदि उनके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के अनुपात में, इसका मतलब हुआ यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी अधिक है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, उनके बीच का जो बल होगा आकर्षण बल कम होगा। यदि दूरी कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसी को कहते हैं हम लोग ये व्युत्क्रमानुपाती, इंग्लिश से बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। ये इक्वेशन 2 हमारा आया। और अब देखें क्या, ये दोनों इक्वेशन को जब कंबाइंड एक साथ मिलाएंगे हम लोग, देखें क्या, F इक्वल टू m1 इंटू m2 और नीचे फिर आएगा r² नीचे में। तो ये हमारा, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि ग्रेविटेशन, ये जो हमारा है ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है, समानुपात का जो साइन है इसको हटाते हैं हम लोग। इसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट टर्म यूज़ करते हैं। कांस्टेंट टर्म हम लोगों ने यहाँ g यूज़ किया और इसे, इसका नाम है, इस कांस्टेंट का नाम है नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, कैपिटल G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या कि ये गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, गुरुत्वीय स्थिरांक हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारा ये फोर्स F इक्वल टू कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2/r², जहाँ की m हमारा m1 मास है पहले वस्तु का, दूसरे वस्तु का मास m2 और r है इन दोनों के बीच, a और b के बीच की दूरी, और g है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और f है फोर्स बिटवीन द टू, दो वस्तुओं के बीच में जो बल है उसे हम f के रूप में निर्धारित करते हैं। और ये एक्सप्रेशन हो गया ये हमारा, इसी के आधार पे हम न्यूमेरिकल बना सकते हैं, सॉल्व करेंगे आगे, और आगे फिर हम लोग नए वीडियोज़ के साथ आएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ईमानदारी से आप अच्छी तरह से 2-3 बार वॉच कीजिएगा और अपनी कॉपी, फिजिक्स की कॉपी में से लिखिएगा। और मैं एक बार और बता दूँ कि ये चैप्टर 1 और 2 जो चैप्टर है आपका है, एक मोशन होगा और एक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इन दोनों चैप्टर से आपके आने वाली जो परीक्षा हैं, खास करके अभी इस महीने 15 तारीख से आपकी परीक्षा होगी, फॉर्मेटिक असेसमेंट 1, फॉर्मेटिक टेस्ट जो आपका 1 है वो होगा, उसमें ये 2 चैप्टर से ही प्रश्न आएंगे। इसलिए इन दोनों चैप्टर को अच्छी तरह से आप ध्यान से तैयारी करेंगे और आप अच्छे अंक लाएंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। स्टे